ملک بھر میں UPSC امتحان کا انعقاد۔ رنگا ریڈی ضلع انچارج کلکٹر سی نارائن ریڈی نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ آج ملک بھر میں UPSC امتحان کا پرامن اور منظم انداز میں انعقاد کیا گیا۔ امتحان کے انعقاد کو شفاف اور کسی بھی بدعنوانی سے پاک رکھنے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے۔ رنگا ریڈی ضلع انچارج کلکٹر سی نارائن ریڈی نے بھی مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ امتحانی مراکز پر کسی بھی قسم کی غفلت نہ برتیں اور تمام امیدواروں کے لیے پرسکون ماحول کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ انچارج ضلع کلکٹر نے اس بات پر زور دیا کہ UPSC کی اعلیٰ معیارتی سطح کو برقرار رکھنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور امتحانی عمل میں مکمل شفافیت ہونی چاہیے۔ کلکٹر نے عملے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امیدواروں کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ضابطۂ اخلاق کی مکمل پاسداری بھی کی جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج منعقد ہوئے امتحان میں امیدواروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور امتحانی مراکز کے ارد گرد دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ بانسواڑہ میں اسپیشل برانچ میں تعینات کانسٹیبل کی جانب سے پاسپورٹ ویریفیکیشن اور ملازمت کی تصدیق کے نام پر عام لوگوں سے نقد رقم اور شراب کی بوتلوں کی فرمائش کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ بانسواڑہ میں اسپیشل برانچ میں تعینات ایک کانسٹیبل سریش پر سنگین بدعنوانی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ کانسٹیبل پر الزام ہے کہ وہ پاسپورٹ ویریفیکیشن اور ملازمت کی تصدیق کے نام پر عام لوگوں سے نہ صرف نقد رقم کا مطالبہ کر رہا ہے بلکہ کھلے عام شراب کی بوتلوں کی بھی فرمائش کی جا چکی ہے۔ اس معاملے نے اس وقت طول پکڑا جب کانسٹیبل سریش کی ایک آڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ آڈیو میں اسے صاف طور پر ایک درخواست دہندہ سے پیسوں اور شراب کی بوتل کا مطالبہ کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ صرف آڈیو ہی نہیں بلکہ ایسی کئی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں جن میں کانسٹیبل سریش کو مختلف افراد سے سرعام رقم لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بعد محکمہ پولیس میں کھلبلی مچی ہے۔ کانسٹیبل کے خلاف شکایت کا سیلاب بھی امٹ پڑا ہے اور متاثرہ افراد نے DIG سے باضابطہ تحریری شکایت درج کرواتے ہوئے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مقامی عوام اور سوشل میڈیا صارفین اس بات پر شدید برہمی ظاہر کر رہے ہیں کہ آخر اتنے سنگین الزامات اور ثبوتوں کے باوجود کانسٹیبل سریش کو اب تک اسپیشل برانچ جیسے حساس شعبے میں کیسے برقرار رکھا گیا ہے۔ فی الحال عوام کی نگاہیں اعلیٰ حکام پر ٹکی ہیں کہ وہ اس بدعنوان کانسٹیبل کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں۔ TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ کی سالگرہ تقریب گاندھی بھون میں منعقد کی گئی۔ پارٹی قائدین اور کارکنان نے مہیش کمار گوڑ کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ TPCC ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں آج TPCC صدر مہیش کمار گوڑ کی سالگرہ تقریب منعقد ہوئی جس میں پارٹی کے سینئر قائدین، کارکنان اور مہیش کمار گوڑ کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دریں اثنا مہیش کمار گوڑ نے پارٹی قائدین کے ساتھ کیک کاٹا۔ قائدین نے انہیں گلدستے پیش کر کے سالگرہ کی مبارکباد دی اور سیاسی کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کانگریس کے سرکردہ قائدین نے مہیش کمار گوڑ کی پارٹی کے لیے کی گئی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں تلنگانہ کانگریس مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ گاندھی بھون کے احاطے میں اس موقع پر پارٹی کارکنان میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ انہوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا، پٹاخے جلائے اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ مہیش کمار گوڑ نے تمام قائدین اور کارکنان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پارٹی کی مضبوطی کے لیے مزید تندہی سے کام کرنے کا عہد کیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے مسافرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک نئی مہم شروع کی۔ بس لو بھروسہ نامی اس پہل کے تحت RTC بسوں میں CCTV کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے مسافرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک نئی پہل شروع کی اور اسی پہل کے تحت ریاست کے عادل آباد ضلع میں تقریباً 175 بسوں کو جدید ترین CCTV کیمروں سے لیس کیا گیا۔ یہ کیمرے اب 24 گھنٹے بس کے اندرونی حالات کی نگرانی کریں گے۔ اس سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ ان کیمروں کے ذریعے صرف نگرانی ہی نہیں کی جائے گی بلکہ
लाइव मॉनिटरिंग की सहूलत भी मौजूद रहेगी। कैमरों को आरटीसी कंट्रोल रूम से मुंसलिक किया गया है, जहां से हुकाम किसी भी हंगामी सूरत हाल पर फौरन नजर रख सकते हैं। कैमरे बस के दाखिली रास्तों, ड्राइवर के कैबिन और खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों के साथ साथ फूड बोर्ड की निगरानी करेंगे। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद चोरी, हरासानी और दीगर मशकूक सरगर्मियों को रोकना है। साथ साथ किसी भी हादसे या नाखुशगवार वाक़े की सूरत में हुकाम के लिए सबूत इकट्ठे करने को आसान बनाना है। ख़वातीन और बुजुर्ग मुसाफिरीन के लिए ये कदम इंतहाई मुफीद साबित होगा और रात के वक्त सफ़र के दौरान भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा। TGSRTC के MD ने इस मंसूबे का आगाज़ किया। हुकाम का मानना है कि इस सिस्टम की मौजूदगी से न सिर्फ मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ बढ़ेगा, बल्कि अमले की जवाबदेही और बसें चलाने के मियार में भी बेहतरी आएगी। आदिलाबाद में इस पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद अब कॉरपोरेशन इस निज़ाम को रियासत भर के दीगर डिपोज तक फैलाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। तेलंगाना हुकूमत की ये कोशिश अवामी एतमाद को बहाल करने और सफ़र को महफूज बनाने की जानिब एक मुस्तहकम कदम है। सनत नगर के BRS MLA तलसानी श्रीनिवास यादव ने पार्टी कारकुनान की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि उन्हें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, पार्टी क़यादत उनके साथ खड़ी है। सनत नगर हल्के में पार्टी कारकुनान के एक इजलास से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर व MLA तलसानी श्रीनिवास यादव ने कारकुनान में नया जोश भरने की कोशिश की। उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS एक मजबूत और मुत्तहद जमात है, कारकुनान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने साबिक़ वज़ीर आला KCR को शेर से तशबीह देते हुए कहा कि फ़िलहाल पार्टी का शेर फार्म हाउस पर आराम कर रहा है और शेर के कभी कभार के दौरे ही मुखालिफिन में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस के कुछ रहनुमाओं की धमकियां BRS कारकुनान को डरा नहीं सकती, क्योंकि BRS के कारकुनान जेल जाने, लाठी खाने और जद्दोजहद करने के आदी हो चुके हैं। कारकुनों को मुखातिब करते हुए साबिक़ वज़ीर ने कहा कि पार्टी हर BRS कारकुन के साथ खड़ी है और पार्टी की सियासी शनाख्त उसी तंजीम की ताकत से जुड़ी है, लिहाजा कारकुनान को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कारकुनों से ये अपील की कि वो अवाम के दरमियान रहें और उनके मसाइल हल करने के लिए काम करें। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में चमन फाटक के करीब रेल की पटरी पर जोरदार धमाका हुआ। 3 FSC एहलकार समेत 14 अफराद जाँ बहक और मुतादद जख्मी हुए। हलाकतों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि क्वेटा में चमन फाटक के करीब रेल की पटरी पर जोरदार धमाका हुआ। धमाका एक पास से ही गुजरने वाली रेल के पास हुआ, जिसके फौरन बाद आग भड़क उठी। बताया जाता है कि धमाका इस कदर शदीद था कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनी गई और अतराफ की इमारतों के शीशे और खिड़कियां टूट गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि धमाके के बाद पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा स्टेशन पर ही रोक लिया गया। धमाके के बाद सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करते हुए डॉक्टर्स और तिबी अमले को तलब किया गया। हुकाम ने बताया कि रेल की पटरी पर धमाके के बाद जख्मी होने वाले 20 अफराद को सिविल सेंटिमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के माविन ख़ुसूसी ने 14 हलाकतों की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि हलाक होने वालों में 3 FSC के जवान भी शामिल हैं। बताया जाता है कि धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। हुकाम ने यह भी कहा है कि हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। माविन वज़ीर आला के मुताबिक दहशतगर्दों ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। ये हमला अमन दुश्मन अनासिर की एक बुज़दिलाना कार्रवाई है और वो उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। इस तरह से अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। इस वाक़े के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया है और जाए वक़्त से शवाहिद इकट्ठा करके वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू की गई है। BRS रहनुमा जीवन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए पूछा है कि आखिर वज़ीर आला की तवज्जो धान की खरीदारी जैसे अहम अवामी मसले पर क्यों नहीं है। तेलंगाना में धान की खरीदारी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। अपोजिशन जमातें हुकूमत पर किसानों को दरपेश मसाइल से गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। BRS रहनुमा जीवन रेड्डी ने आज मीडिया से
बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पूछा कि आखिर वज़ीर आला की तवज्जो धान की खरीदारी जैसे अहम अवामी मसले पर क्यों नहीं है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि वज़ीर आला के पास फुटबॉल टूर्नामेंट्स और खूबसूरती के मुकाबलों के इनेकाद के लिए वक्त भी है और वो उस पर तवज्जो भी देते हैं, लेकिन उन्हें किसानों की उन तकलीफों का एहसास ही नहीं जो खरीदारी मराकज़ पर कतारों में खड़े हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद किया है। उनका ये दावा है कि अब तक तकरीबन 80% धान की खरीदारी मुकम्मल हो चुकी है और सिर्फ 20% बाकी है। उन्होंने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो किसानों के दुख का सियासी फ़ायदा उठाने के लिए झूठे आदाद-ओ-शुमार फैला रही हैं। ताहम अपोजिशन जमातें बशमूल BRS और BJP वज़ीर आला के दावे को मानने से इनकार कर रही हैं। అందాల పోటీల నిర్వహణ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ నిర్వహణ ఆయన ఏదైతే అందాల పోటీల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏ విధంగా సమాయుక్తం చేసిండో, ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ నిర్వహణకు ఏ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాయుక్తం చేసిండో, వరి ధాన్యం కొనుగోలు సేకరణ పట్ల ఏదైతుందో మరి ఆ ఆలోచన లేకపోవడు అసలు ప్రభుత్వం దృష్టిలో పల రైతాంగమైన వారు ఉన్నారా అని చెప్పని అనుమానం కలుగుతుందని చెప్పంటున్నా। तेलंगाना के जिले महबूब नगर में तेज हवाओं ने आम जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर किया। कलेक्ट्रेट के सामने मौजूद एक बस शेल्टर शदीद हवा के दबाव की वजह से सड़क पर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जरा ने बताया कि महबूब नगर में तेज हवाओं और जोरदार बारिश ने आम जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर किया। जिले में सबसे ज्यादा तशवीशनाक मंजर कलेक्ट्रेट के सामने देखने को मिला, जहां पर मोडा की निगरानी में कायम किया गया बस शेल्टर अचानक हवा के शदीद दबाव की वजह से सड़क पर गिर पड़ा। खुशाइन बात यह रही कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वहां कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था, वरना बड़ा जानी नुकसान हो जाता। इस वाक़े ने तामीराती मियार पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या हुकाम की ज़ेर निगरानी तामीर किए गए अवामी सहूलियात के ढांचे इतने कमज़ोर हैं कि हवाओं से भी गिर जाएं? आपको बता दें कि मुकामी लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया फौरी तौर पर शहर में मौजूद दीगर पुरानी और कमज़ोर तामीरात का जायज़ा ले, ताकि मुस्तक़बिल में किसी भी बड़े हादसे को पेश आने से रोका जा सके। BRS के कारगुजार सदर KTR ने वाज़ेह किया कि अवाम के दरमियान रहने वाले लीडर्स को ही टिकट दिया जाएगा। BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर KTR ने अंबरपेट में पार्टी कारकुनान के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इंतखाबात के दौरान उम्मीदवारों के इंतखाब और सीटों की तक़सीम में मुकम्मल तौर पर अवामी सर्वे और ज़मीनी हक़ाइक़ को अहमियत देती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी किसी भी हल्के में उम्मीदवार के इंतखाब का फैसला अंधाधुंध नहीं करती, बल्कि पेशा वाराना सर्वे रिपोर्ट्स और अवाम की राय को बुनियाद बनाती है। KTR के मुताबिक पार्टी के अंदर किसी भी उम्मीदवार के इंतखाब का वाहिद पैमाना इसके जीतने की सलाहियत होती है। जो उम्मीदवार अवाम में मकबूल है और जो ज़मीनी सतह पर मजबूत गिरफ्त रखता है, उसे ही तरजीह दी जाती है। KTR ने कहा कि पार्टी क़यादत का मानना है कि सर्वे के जरिए अवाम के मिजाज को समझना और उसी के मुताबिक अपनी हिकमत अमली तैयार करना ही इंतखाबात में कामयाबी की कुंजी है। आपको याद दिला दें कि KTR ने माजी में भी पार्टी के अंदरूनी फैसलों को लेकर ये बात दोहराई है कि BRS एक ऐसी जमात है जो अवाम की राय हासिल करती है। वो अपने हामियों और कारकुनान की राय को अहमियत नहीं देती, बल्कि हतमी फैसले के वक्त सर्वे और डेटा को फौकियत दी जाती है। KTR ने वाज़ेह किया कि ऐसे लीडर्स जो महज लीडर्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि अवाम के दरमियान रहने वाले लीडर्स को इंतखाबात में टिकट दिया जाएगा। रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज किया जा रहा है। हुकूमत 2.5 लाख नए मकानात की तामीर का इरादा रखती है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बेघर अफराद के ख्वाबों को पूरा करने की सिमत एक और कदम उठाया है। वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने ये ऐलान किया है कि काबीना ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रियासत भर में 2.5 लाख नए घर तामीर किए जाएंगे। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि हुकूमत ने इस मंसूबे को मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए हर असम्बली हल्के के लिए 2000 घरों का
कोटा मख्तस किया है और इसका मकसद रियासत के हर कोने तक हुकूमती फलाही स्कीमात की रसाई को यकीनी बनाना है। हुकूमत ने न सिर्फ नए घर फराहम करने का ऐलान किया है बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में उन अधूरे मकानात पर भी तवज्जो मरकूज की है जो बरसों से नामुकम्मिल पड़े हैं। पीसी निवास रेड्डी ने बताया कि ऐसे मकानात के लिए हुकूमत 3 लाख रुपये की इमदादी रकम फराहम करेगी। जिन मकानात का काम सिर्फ स्लैब तक ही पहुँच कर रुक गया था उन्हें मुकम्मिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से 2 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। आपको बता दें कि इंदिरा मां हाउसिंग स्कीम के पहले मरहले के तहत तामीर किए गए मकानात की तामीर आखिरी मराहल में है और ये समझा जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख मकानात की तामीर मुकम्मिल हो चुकी है और 2 जून यानी तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर उन मकानात का इफ्तिताह किया जाएगा। अनन्या इंफ्रा के मालिकान ने कांग्रेस के एक रुकने पार्लियामेंट पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए ये दावा किया है कि 200 करोड़ रुपये मालियत की जमीन को सिर्फ 10 करोड़ रुपये में हथियाने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। अनन्या इंफ्रा के मालिकान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस के एक रुकने पार्लियामेंट की जानिब से उन्हें धमकाया जा रहा है और 200 करोड़ रुपये मालियत की ज़मीन को सिर्फ 10 करोड़ रुपये में हथियाने के लिए उन पर दबाव भी डाला जा रहा है। बताया जाता है कि अनन्या इंफ्रा के मालिकान को धमका कर ये कहा गया है कि अगर सस्ते सौदे पर रजामंदी जाहिर न की गई तो उन पर और उनके अहले खाना पर झूठे मुकदमात आयद करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। अनन्या इंफ्रा के मालिकान ने यह भी बताया कि ये पहली बार नहीं है जब उन्हें हरासा किया जा रहा है। इससे कबल भी इस तरह के हथकंडे अपनाए गए थे जिसके तहत उन्हें 4 माह तक मुसलसल तहकीकात और कानूनी चाराजोई के नाम पर जहनी अजियत से गुजरना पड़ा था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।